We focus on the next topic, abnormal molecular masses and Ventov factor. It is very important because of these things your entire colligative properties are changed. You remember your colligative properties: the lowering of vapor pressure, the depression in the freezing point, elevation of boiling point is there, osmotic pressure. These four topics we have already covered in the colligative properties. Now you know that we are always adding non-volatile solutes. Okay, and from all these things, from all the four colligative properties, we are always calculating the molecular masses of the non-volatile solutes. So there are there are different types of solutes and they have different natures. That for example, if you see certain non-volatile solute जैसे कि यूरिया है, शुगर है, ठीक है, and you have glucose is there or sucrose is there. In these case they are not at all, they are they all are covalent compounds, and in this case there whatever the chemical formula is been there, you are expecting the values, the same values of molecular masses are obtained, okay, because they are not going for dissociation and all that. But there are certain elements, certain substances that their molecular masses when you are calculating is different, they are coming out in a different form, है ना. So what is the case when they are going for different, either they go for dissociation और एसोसिएशन, ठीक है, मतलब या तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट टूट जाएं और हमें आयंस दे दें. एसोसिएशन क्या हो जाए कि वो उनके मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बिग मॉलिक्यूल्स देते हैं, जैसे पॉलीमराइजेशन में चला जाता है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम अराइजिंग. जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl इज़ ऑल्सो अ नॉन वोलेटाइल बट इट गोज़ फॉर डिसोसिएशन. तो क्या हो जाता है जब वो डिसोसिएशन पे जाता है, इट गिव्स यू Na आयंस एंड Cl आयंस, है ना. तो इनिशियली अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए हैं, अब उसके आयंस हमें कितने मिल रहे हैं, 100 इसके मिलेंगे, 100 इसके, तो टोटल कितने होंगे आपके पास, 200 हो गए. तो बढ़ गया ना. तो दैट इज़ द केस ऑफ डिसोसिएशन. और एसोसिएशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो लिया बेंजोइक एसिड. इफ़ यू रिमेंबर बेंजोइक एसिड इज़ दिस. अब बेंजोइक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अगर हमने ले रहे हैं, ये क्या हो जाता है, ये दे गो फॉर एसोसिएशन पार्ट, दे डाइमर्स फॉर्म बना लेते हैं, डाइमर्स बना लेते हैं, ठीक है. तो क्या हो गया, इनने एसोसिएशन कर लिया. तो ये फिनोमेना क्या हुआ आपका, एसोसिएशन का, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया. सपोज़ करो अब यहाँ पे आपने आपने ना 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके एसोसिएट हो जाएंगे. अब आपको 50 रह जाएंगे क्योंकि ये डाइमर्स बना रहे हैं ना. दो मॉलिक्यूल एक में हो जाता, लेकिन कहलाएगा तो एक ही मॉलिक्यूल डाइमर बना के. तो क्या हुआ, क्या हाफ हो गए. अब ये ज़रूरी नहीं है कि हाफ हो, कहीं 3 टाइम्स और लेस हो जाते हैं. इस तरह की कंडीशन होती है एसोसिएशन की, और ये वाली कंडीशंस होती हैं आपकी डिसोसिएशन की. तो क्या हुआ कि आपका जो मॉलिकुलर मास है, जो एक्सपेक्टेड मॉलिकुलर मास होना चाहिए, वो उससे फ़र्क निकल जाता है. सो दैट इज़ द केस ऑफ एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास. ओरिजिनल इनका जो भी होगा, लेकिन उससे अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे, इसका मॉलिकुलर मास वो फ़र्क है, लेकिन इसका करोगे तो इसका फ़र्क निकलेगा. तो क्या हुआ, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपने मॉलिकुलर मास की देखी, वो इस सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, वो डिफरेंट होगी जो इनका ओरिजिनल या इनकी नॉर्मल वैल्यू रही होगी. सो दैट इज़ व्हाट योर एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास. आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक. When the experimental observed molecular mass of a substance determined on the basis of a colligative properties is found to be different from the normal value as expected from its chemical formula, the observed molecular mass is referred to as abnormal molecular mass. So you are getting my point, how this is happening. So every time we are focusing on the colligative properties, and you know that the colligative properties is always depending on number of particles, ठीक है, number of particles of present in the solution, they do not depend on nature of solute, chemical nature of solute. You can write down chemical nature of the solute, ठीक है. So let's focus on this thing. If we assume it this thing as a colligative property, is directly proportional to the number of particles of
सॉल्यूट, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ द केस। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की केस में ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। कुछ और आपके पास आते हैं रिगार्डिंग द मॉलिकुलर मासेस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जो आपका कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास सॉल्यूट होता है वो बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आ रहा है। आपने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखी हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपका मॉलिकुलर मास होता है ऑफ द सॉल्यूट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपका जो मॉलिकुलर मास है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो वी आर गेटिंग सो मैनी थिंग्स। दिस पॉइंट आया हमारा, ये आया, यानी यहाँ पे हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉलिकुलर मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। दिस थिंग कैन बी ऑन ऑल्सो देयर। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द सोल्यूशन, और कुछ भी कह लो, मॉलिकुलर मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट in solution. So we are getting these things, so many points are coming. So I think association or dissociation में देख लेते हैं. Now class will focus on the three types of solutes. We have seen solutes do not go for association or dissociation. Basically they are non-electrolytes, like urea is there, sucrose is there, glucose are there. These are the examples. If you remember that I have already discussed with you that the molecular states they do not change. So what is the scenario about the colligative properties? The colligative properties are also not changing. Their values are normal. Whatever you get the answer, जैसे हमने उस दिन करा था ना, we were doing that and we were seeing that I was not putting any change in the colligative properties ना. The colligative properties values were normal values which were obtained because the molecular mass is also same. The value that is being obtained observed molecular mass जो आएगी और जो आपका फॉर्मूले के थ्रू molecular mass आएगी वो दोनों क्या होगी, वो सेम निकलेगी। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल आप molecular mass निकालेंगे वो और जो आप फॉर्मूले के थ्रू molecular mass निकालेंगे उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों सेम होंगी, क्योंकि इनकी जो पार्टिकल्स हैं वो ना एसोसिएशन पे जा रहे हैं ना डिसोसिएशन। मतलब इनिशियली अगर आप फॉर्मूले के बेसिस पर देखेंगे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं सोल्यूशन में, और जब आप उनको एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे तब भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हैं, दोनों के सेम आएंगे, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज़ देयर। Now the next part is solution undergoes association in solution. Solute undergoes association in solution. I have already discussed with you with the benzene that they go for formation. जैसे दो molecules यहाँ हैं, दोनों combined हो associate कर जाएंगे और डाइमर्स बना लेंगे. It's not necessary over here कि वो डाइमर्स बनाएं, हो सकता है कुछ अलग एग्जाम्पल आप लें तो ट्राइमर्स भी बने, मतलब यहाँ 3 molecules लग जाएंगे, इसके टेट्रामर्स आपको मिले, है ना। तो these were the cases of your association part. तो मीन्स मॉलिक्यूल्स सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं, तो एसोसिएट करने लगते हैं और बिगर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। सो व्हाट इज़ द सिनेरियो, सपोज अगर इनिशियली हमने 100 या मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, वो हैव डिस्कस अर्लियर। सो डाइमर्स इफ दे आर फॉर्मिंग दैट इट बिकम्स हाफ, 100 के कितने हो जाएंगे, 50। ट्राइमर्स बनाए तो 3 टाइम्स लेस हो जाएंगे, यू डिवाइडेड 100 by 3। सो दिस इज द केस। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट्स इन द सोल्यूशंस they decreases. So over here there is a change in the molecular state. सो यू विल ऑलवेज सी द मॉलिकुलर वैल्यू इज़ हायर। जो आपका फॉर्मूले में इसकी मॉलिकुलर वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो डिफरेंट आएगी। आप जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करके उसकी फॉर्मूला वैल्यू निकालेंगे तो क्या वो डिफरेंट आएगी। मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड मॉलिकुलर मास की वैल्यू है वो कम आएगी, और जो आप एक्सपेरिमेंटल करने के बाद अब उसका मॉलिकुलर मास की आप वैल्यू निकालोगे तो वो ज़्यादा निकल के आएगी। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हायर वैल्यू ऑफ observed molecular masses of solute. So now if you remember, I have already discussed with you that the colligative property was inversely proportional. हम ये भी लिख लेते हैं that the colligative, that the molecular मास हमने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में, मॉलिकुलर मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो व्हाट हैपन, योर मॉलिकुलर मास इज़ हायर हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर ये लो होगा तो ये हाई होगा, ये हाई है तो ये लो। तो एसोसिएशन के केस में मॉलिकुलर मास हाई होता है, इसीलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। अगर सपोज करो हम आपको एग्जाम्पल देते हुए
यही बेंजोइक एसिड का, तो आप हमें बताएंगे कि बिकॉज द मॉलिकुलर मास, जो ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास है वो हाई निकल रहा है इसमें, एंड बिकॉज ऑफ दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिक्रीजिंग. बाय इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज द molecules that are present in the solution, they go for association, they associate together and they form dimers, and because of that the number of particles are decreases. क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड. तो यहाँ पे आपके क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जा रहे हैं, हो रहे हैं ना, या 100 थे या 50 हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. सो देर आर टू वेज टू गिविंग द आंसर. पुट दीज 2 पॉइंट्स इन योर आंसर इफ यू आर गिविंग. ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 100% ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आता है, ठीक है. कभी कभार तो एवरी ईयर इट इज़ कमिंग. Now let's come to the solute that undergoes dissociation in the solution. I have given you the examples that mainly the electrolytes goes for dissociation. जैसे है ना, NaCl, KCl, कोई भी आप देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, कोई भी ले लीजिए, तो दिस थिंग यू कैन हैव, दे गो फॉर डिसोसिएशन पार्ट. तो ये ब्रेक हो जाते हैं जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये आयंस देते हैं. सपोज जैसे मैंने पहले ही डिस्कस करा है, आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, अब इसको 100 इसके आयंस मिलेंगे, 100 इसके आयंस. तो इनिशियली आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आपने यूज़ करे, 100, लेकिन अब आपके पास कितने हो गए, 200. इसका मतलब यू आर गोइंग फॉर डिसोसिएशन पार्ट. तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, इज़ ऑलवेज रिमेंबर. तो यहाँ पर भी क्या है कि मॉलिकुलर मास आपका चेंज हो रहा है, लेकिन आप देखिए, आप अगर इसका मॉलिकुलर मास निकालें वो अलग निकलेगा, इसको निकाल के देखेंगे तो 23 दिख रहा है यहाँ, ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग, द मॉलिकुलर मासेस चेंजेस ओवर हियर ऑल्सो, एंड ओवर हियर यू हैव द लो वैल्यू. इनकी अगर आप वैल्यूज निकालें मॉलिकुलर मास की, कम निकलेगी कंपैरिजन टू दिस. सो वी हैव द लोअर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व मॉलिकुलर मासेस ऑफ सॉल्यूट इज बीन देयर. तो अगेन द सेम थ्योरी, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव. अब ये मॉलिकुलर मास कम हो गया है, यही दोनों फॉर्मूले लगा लीजिएगा. मॉलिकुलर मास कम हो गया है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर बढ़ेगी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज बाय, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशंस दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. इंक्रीज हुआ है ना यार. तो ये दो फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे आपको अपने आंसर में, और एक्सप्लेन करना पड़ेगा थ्योरेटिकली. चिल्ड्रन प्लीज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर आर मैनी थिंग्स वी आर राइटिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म in the videos, but we are speaking to you, so we expect if you are making the notes, then please try to write down the points which I am speaking. So that point, if you are listening, then you should write down that also. Sometimes we are writing so everything we cannot write down on the paper, so it's very important that you have to when you are listening the videos, try to write down or make your own notes what I am speaking, that you can do it. So this is the 3 different states of solutes you can see, and we are trying to complete this portion in a reasoning part. Then we'll see in the next videos about a small different factors on it and how the values has been changed. So that we'll focus over here in the next video.